Good morning, friends. Welcome to my 14th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding average. I have told that average is of two types. One is mathematical average, another is positional average. And we have already covered mathematical average, that is mean. From today onwards, we will discuss regarding positional average, that is median and mode. So there is a basic difference between mathematical average and positional average. First, let me clarify the difference between mathematical average and positional average. Then we will proceed. In case of mathematical average, that is mean, by applying a mathematical formula, we can directly find out the average. But in case of positional average, an additional step is required. We cannot directly find out the average by applying the formula. We have to follow a two-step procedure. First step, we have to find out the position where the average lies. Once we identify the position, then the variable lying in that position is known as the average. So we have to follow two-step approach. First, we will find out a position where average lies. Then we have to identify the variable which lies in that position. That variable will be termed as average. For a better discussion, let me first share my slides with you. Then we will discuss more regarding positional average. Okay, 1 minute, please. Okay, friends. So today we will start regarding positional average. Positional average, we will start first median family. I am knowingly I have written it is median family, क्योंकि मैं मीडियन फैमिली लिखा हूं, ऐसे कहीं पर किताब में मीडियन फैमिली वर्ड आप नहीं देखेंगे, क्योंकि ये मीडियन आप अगर समझ गए, बाकी सब चीज आप समझ सकते हैं. मीडियन एक बार समझ गए तो क्वार्टाइल समझ सकते हैं, मीडियन समझ गए तो डेसाइल समझ सकते हैं, मीडियन समझ गए तो परसेंटाइल समझ सकते हैं. इसलिए मीडियन को जानने के लिए आप अगर मीडियन समझ गए, आप ये सब चीज समझ सकते हैं, क्वार्टाइल समझ सकते हैं, डेसाइल समझ सकते हैं, परसेंटाइल समझ सकते हैं. For this reason only I have written the term median family. ओके, तो आप अगर एक बार मीडियन समझ गए, ये सब उसका भाई बहन है. कौन कौन सा? क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब टर्म एक जैसा है. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग मीडियन. व्हाट इज मीडियन? फर्स्ट वी विल डिस्कस, देन वी विल गो वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे पोजिशनल एवरेज. ऑल दीज आर पोजिशनल एवरेज. मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज, क्वार्टाइल इज ए पोजिशनल एवरेज, डेसाइल is a positional average, percentile is a positional average. In this case, we cannot find out average directly. First, we have to find out a position, then we will find out the average. Okay, two-step procedure we have to follow. So first we will discuss the concept called median, then we will go others. First, median. Write down median. So what is median? Now please see, first we will define median, then we will discuss more on this. First, median. What is median? So first write down, median is the middle value of a series. Median is the middle value of a series after arranging it in ascending order or descending order. Okay, this is the definition. So what is ascending order or descending order? It means increasing order or decreasing order. Increasing order or decreasing order. So let me first read it once again, then we will discuss more on it. So what is median? Median is the middle value of a series.
मीडियन एक सीरीज का मिडिल वैल्यू है। और ये मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगा? ये मिडिल वैल्यू निकलेगा कैसे? पहले सीरीज को अरेंज करना पड़ेगा। ओके, हाउ टू अरेंज द सीरीज? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब हमको क्वेश्चन में जो सीरीज ऑफ डाटा देगा, वो सीरीज ऑफ डाटा को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे या नहीं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे, छोटे से बड़े के क्रम में सजाएंगे या नहीं तो बड़े से छोटे के क्रम में सजाएंगे। एक डाटा सेट देगा, वो डाटा सेट को छोटे से बड़े के क्रम में सजाना है या नहीं तो बड़े से छोटे के क्रम में सजाना है। एक बार डाटा सेट्स को अरेंज कर दिया, वो डाटा सेट का मिडिल वैल्यू, बीच का वैल्यू को हम बोलते हैं मीडियन। इसका मतलब अगर ये अरेंज्ड डाटा सेट है, दिस इज ए डाटा सेट, arranged data set. What is arranged data set? Arranged data set means we have arranged it in which order? Arranged data set ये है, either increasing order और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम एक डाटा सेट को अरेंज कर दिए हैं। अभी ये अरेंज डाटा सेट है, इसका मिडिल पॉइंट, इसका बीच वाला हिस्सा, मिडिल वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा को हम बोलते हैं मीडियन। सो व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सीरीज। बेटा मीडियन समझ में आ रहा है क्या? मीडियन क्या है? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सीरीज आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब मीडियन एक सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? बेटा देखो कितने पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हम लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, मीडियन डिवाइड्स, मीडियन डिवाइड्स the entire series into टू इक्वल पार्ट्स। कोई डाउट है क्या? मीडियन एक सीरीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मीडियन डिवाइड्स द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट्स में मीडियन एक सीरीज को डिवाइड कर देता है, टू इक्वल पार्ट्स। बेटा ये पार्ट में कितना है? ये पार्ट में 50% डाटा है, ये पार्ट में कितना परसेंट है? 50% डाटा है। तो मीडियन एक ऐसा वैल्यू है जिसके पीछे 50% है, जिसके आगे 50% है। तो हम लिख सकते हैं हेंस मीडियन, हेंस द प्लेस ऑफ मीडियन, हेंस द प्लेस ऑफ मीडियन in a series is such that, मीडियन एक ऐसा जगह है such that half of the observations, half of the observations, हाफ मतलब 50%, हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कितना है? 50% आर स्मॉलर देन मीडियन। बेटा स्मॉलर देन मीडियन कौन सा है? ये वाला पोर्शन स्मॉलर देन मीडियन है। एंड हाफ आर, हाफ मतलब अनदर 50% आर लार्जर देन मीडियन। इसका मतलब क्या है? मीडियन एक ऐसा वैल्यू है, ये डाटा का, ये डाटा सीरीज का 50% उससे नीचे है और बाकी का 50%, ये जो बाकी का 50% उससे ऊपर है। समझ में आ रहा है क्या? सो इसको बोलते हैं मीडियन। सो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ ए सीरीज ऑफ डाटा आफ्टर अरेंजिंग इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन समझ में आ रहा है क्या? तो मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार अगर समझ में आ गया, फिर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट मीडियन। मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। ओके, एक सेकंड बेटा।
अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। राइट डाउन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड, नहीं तो हेडिंग करो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, मीडियन को हम कैसे कंप्यूट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। बेटा मीडियन कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, हम पहले पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट मीडियन इन कंटीन्यूअस सीरीज। तो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन में फास्ट देखेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज को हम बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल सीरीज या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में कैसे हम क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे। सेकंड पढ़ेंगे इन केस ऑफ व्हिच सीरीज, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। थर्ड हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ व्हिच सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बेटा हमको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में सिर्फ एक्स देगा, डिस्क्रीट सीरीज में हमको एक्स देगा और एफ देगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक्स देगा एफ देगा, लेकिन एक्स जो देगा वो कौन से फॉर्म में देगा, क्लास इंटरवल फॉर्म में देगा। क्लास इंटरवल मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 लाइक दिस, इस तरह का देगा। समझ में आ रहा है क्या। तो अभी पढ़ेंगे हाउ टू कंप्यूट मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, इन डिस्क्रीट सीरीज, इन कंटीन्यूअस सीरीज। लेकिन ये जो भी सीरीज हो, मीडियन कैलकुलेट करने से पहले वी हैव टू अरेंज द डाटा। मीडियन हो, डेकाइल हो, परसेंटाइल हो, वी हैव टू अरेंज द डाटा। व्हाट इज अरेंज द डाटा, डाटा अरेंजमेंट कैसे होगा, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वी हैव टू अरेंज इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम किसको अरेंज करना पड़ेगा, डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन सा एवरेज है, ये पोजिशनल एवरेज है। जब भी हम पोजिशनल एवरेज निकालते हैं हमको डाटा को पहले अरेंज करना पड़ता है। कैसे अरेंज करना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आ रहा है क्या। तो अभी देखेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। हेडिंग करो इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम मीडियन निकालेंगे। बेटा लिखो इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज मीडियन इज इक्वल टू n plus 1 by tooth item। बेटा n plus 1 नहीं है, n plus 1 by 2 नहीं है, ये मीडियन का वैल्यू है n plus 1 by tooth item। मतलब n plus 1, n एक और 7 है, 7 plus 1 by 2 हो गया फोर्थ आइटम। n अगर 9 है, 9 plus 1 by 2 मतलब 10 by 2 दैट इज फिफ्थ आइटम। इसका मतलब n plus 1 by tooth item इज इक्वल टू मीडियन। टूथ आइटम ये इंपॉर्टेंट है। सो मीडियन का फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है, मीडियन इज इक्वल टू n plus 1 by टूथ आइटम। नाउ व्हाट इज n, पहले पढ़ेंगे n क्या है, n मींस नंबर ऑफ आइटम्स, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को n बोलेंगे। बेटा एक एग्जाम्पल लेंगे इंडिविजुअल सीरीज का, फिर हमको क्लियर हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। एग्जाम्पल 1 लिखो, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग, मीडियन निकालो इन सब से। क्या क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, किसका डाटा दिया हुआ है, 15, 17, 18, 3, 5, 20, 25। इसका मीडियन निकालना है। बेटा मैं बहुत बार बोला हूं पोजिशनल एवरेज में वी हैव टू फर्स्ट अरेंज दी डाटा।
पहले इसको अरेंज, इज इट अरेंज्ड? No, it's not arranged. First we have to arrange the data either in increasing order or in decreasing order, then only we can find out median. So इसका solution करेंगे, इस साइड में मैं solution करता हूं. First solution, बेटा सॉल्यूशन करता हूं. पहले अरेंज्ड डाटा, डाटा को अरेंज करेंगे. अरेंज्ड डाटा, व्हाट इज द डाटा अरेंजमेंट? पहले अरेंज करो डाटा को. क्या क्या है? सबसे कम कौन सा है? सबसे कम 3 है, तो 3 चला गया. नेक्स्ट कौन, उससे ज्यादा कौन सा है? 5 है, तो 5 चला गया. 5 के ऊपर टिक लगा दिया. नेक्स्ट उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा है 15, 15 है, हाँ 15 है, तो 15 चला गया. नेक्स्ट वाला क्या है? 17, 17 चला गया. नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला है 18, 18 चला गया. 18 के ऊपर टिक लगा दो. नेक्स्ट वाला कौन सा है? 20, 20 चला गया. नेक्स्ट वाला कौन सा है? 25, 25 चला गया. अभी हम एन निकालेंगे. एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम. 1 2 3 4 5 6 7, 7. एन इज इक्वल टू 7. देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन कैसे निकलेगा? मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे. फॉर्मूला क्या है? एन प्लस 1 बाई 2th आइटम. बेटा एन कितना है? एन है 7 प्लस 1 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 8 बाई 2th आइटम, दैट इज इक्वल टू 8 बाई 2th आइटम, दैट इज इक्वल टू 8 बाई 2 कितना रे बेटा? 4th आइटम. तो मीडियन आपका आ गया. 4 नंबर वाला आइटम मीडियन है. तो इसको अभी अरेंज्ड डाटा में देखेंगे 4 नंबर में कौन है. बेटा ये कितने नंबर में है? ये एक 3 है 1 नंबर में. अच्छा, ये है 2 नंबर में 5, ये है 3 नंबर में, ये है 4 नंबर में. तो 4 नंबर वाला आइटम कौन सा है? 17. ये 17 एक ऐसा आइटम है जो 4 नंबर पे बैठा हुआ है. तो 4 नंबर वाला आइटम मीडियन है. कैसे पता गया 4 नंबर? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 5 2 नंबर, 15 3 नंबर, 17 4 नंबर. तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 4 नंबर में जो बैठा हुआ है वो मीडियन हो गया. 4 नंबर में कौन बैठा हुआ है? 17 बैठा हुआ है. तो मीडियन इज इक्वल टू 17. आपका आंसर आ गया कितना? 17, 17 आ गया आपका आंसर. बेटा मीडियन समझ में आ रहा है क्या? मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ रहा है? तो मीडियन इज इक्वल टू इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला है n प्लस 1 बाई 2th आइटम, n प्लस 1 बाई 2. ओके, तो नेक्स्ट हम और एक प्रॉब्लम करेंगे, आपको और समझ में आ जाएगा. ओके बेटा, नाउ वी विल कैलकुलेट थर्ड, that is known as example number 2. लिखिए कैलकुलेट median from the following. Calculate median from the following. क्या क्या डाटा दिया हुआ है? पहला डाटा दिया हुआ है 2, नेक्स्ट वन इज 15, नेक्स्ट वन इज 11, नेक्स्ट वन इज 2 15 11, next one is 12, next one is 30, next one is 40. Beta, this is the data. We have to calculate median. Okay, this is question. We have to solve it. तो solution. So इसका solution करने से पहले is it arranged data? No. So ये जितना पोजिशनल एवरेज होता है उसको कैलकुलेट करने से पहले हमको डाटा को अरेंज करना पड़ता है. अगर अरेंज नहीं है तो अरेंज करना पड़ता है. अरेंज कैसे करते हैं? छोटे से बड़े के क्रम में या बड़े से छोटे के क्रम में. तो पहले अरेंज्ड डाटा निकालेंगे. व्हाट इज अरेंज्ड डाटा? डाटा को अरेंज करो. अरेंज डाटा छोटे से बड़े के क्रम में लगा दो. छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है सर आपका सबसे छोटा आ रहा है आपका
2, ठीक है। सेकेंड वाला आइटम कौन सा है सर? सेकेंड वाला आइटम आ रहा है 2 से बड़ा है 11, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला आइटम कौन सा है? 2 चला गया, 11 चला गया, थर्ड वाला आइटम सर आ रहा है 12, ठीक है 12। अच्छा, उससे बड़ा थोड़ा कौन सा है सर? 15 आ रहा है, 15, ओके। नेक्स्ट उससे बड़ा कौन है? उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? 30 सर आ रहा है, 30। नेक्स्ट उससे बड़ा कौन सा है सर? 40 आ रहा है, 40। सो आई गॉट द आइटम्स, ओके। सो अरेंज डाटा 2, 11, 12, 15, 30, 40। दिस इज द अरेंज डाटा। नाउ फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू नाउ आई फाइंड आउट द डाटा। नाउ अभी क्या करना पड़ेगा? एन निकालना पड़ेगा। बेटा एन कितना है? देखो एन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एन इज इक्वल टू 6। तो एन है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट मीडियन। सो मीडियन कितना होगा? फॉर्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला है एन प्लस 1 बाई टूथ आइटम। बेटा एन है 6 प्लस 1 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 3.5 आइटम। बेटा 3.5, 3.5 कैसे निकलता है? हमको पता है, अगर ये थर्ड आइटम है, ये फोर्थ आइटम है, थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम के बीच में आपको मिलेगा 3.5। ये बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ये ही मीडियन है, ये यहां पर जो बैठा हुआ है ये मीडियन है। तो यहां पर कौन बैठा हुआ है? पहले देखेंगे थर्ड में कौन बैठा हुआ है, थर्ड आइटम। तो थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम बाई 2 इज इक्वल टू 3.5 आइटम। तो लिखेंगे यहां पर 3.5 आइटम इज इक्वल टू क्या है? 3.5 आइटम थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। बेटा थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम का 2 से डिवाइड करने से हमारा आ जाता है मीडियन, ओके। दिस इज सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, देखकर बोलो थर्ड आइटम में कितना है? थर्ड आइटम, फर्स्ट आइटम ये है, सेकंड आइटम ये है, थर्ड आइटम ये है। तो थर्ड आइटम में आपका 12 है, प्लस फोर्थ आइटम में कौन सा है? ये वाला फोर्थ आइटम है। फोर्थ आइटम में 15 है, 12 प्लस 15 बाई 2। बेटा 12 प्लस 15 कितना हो रहा है? 27, 27 बाई 2, 27 बाई 2 कितना आता है? 13.5। तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 13.5 आंसर। ये हमारा आंसर है। आंसर कितना है? 13.5। बेटा इंडिविजुअल सीरीज ओवर समझ में आ रहा है क्या? मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन हमको निकालने का क्या है, कैसे हम निकाल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 था, 13.5। अभी हम इंडिविजुअल सीरीज चला गया है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा सीरीज? डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज खत्म हो गया। मीडियन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, n प्लस 1 बाई 2 आइटम, बट वी हैव टू अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड वाला सीरीज, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। ओके, सो अभी लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। हेडिंग करो, कंप्यूटेशन ऑफ median in which series? In discrete series। बेटा डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का वही फॉर्मूला है,
मीडियन इज इक्वल टू जो इंडिविजुअल सीरीज में था डिस्क्रीट सीरीज में वही है, n प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ आइटम. But we have to arrange the data in ascending order or descending order. Arrangement is compulsory in case of all positional average. तो नोट क्या है, अरेंज्ड डाटा का, अरेंजमेंट ऑफ डाटा, ये याद रखना है. अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज कंपल्सरी इन ऑल पोजिशनल एवरेज. पोजिशनल एवरेज आएगा, आपको डाटा को पहले अरेंज करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है क्या? तो डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हमको क्लियर हो जाएगा हाउ टू कंप्यूट मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. तो एग्जांपल लो, सपोज x दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो x वैल्यूज आर गिवन. एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एग्जांपल 3, x values are given, f value is given, x is given, f is given in your question. X value is given, f value is given. Now x is suppose 10, 20, 30, 40, 50, 60. X value is given. N value, f value is given. What is the value of f? F value is 10 का f है 2, f मीन्स फ्रीक्वेंसी, और 20 का है 3, और नेक्स्ट वाला का है 5, नेक्स्ट वाला का है 4, नेक्स्ट का है 3, नेक्स्ट का है 2. n इज गिवन. सो व्हाट इज n? n इज इक्वल टू टोटल ऑफ f. कितना होता है? f का टोटल बना दो, जितना आता है 2 3 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 2 19. n is equal to 19. This is the question given. अभी इसको सॉल्व करेंगे, हाउ टू कंप्यूट मीडियन ऑफ दिस फिगर्स. ओके, सो फास्ट हमको क्या करना पड़ेगा? फास्ट हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको एक चीज निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं CF. बेटा व्हाट इज CF? CF का मतलब क्या है? CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो F मीन्स फ्रीक्वेंसी, CF मीन्स cumulative frequency. What is the accumulated frequency? So फर्स्ट केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी मिलकर कितना होता है? क्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट होता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो अभी x में 2 है तो ये 2, फिर नेक्स्ट में 2 था, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हो गया 3, तो टोटल क्यूमुलेट एक्यूमुलेट होकर 2 + 3 हो गया 5. थर्ड केस में 5 था और 5 आ गया तो हो गया 10. फोर्थ केस में 10 था, अभी 4 आ गया 14. फिर नेक्स्ट केस में 14 था, 3 आ गया 17. नेक्स्ट केस में 17 था, 2 आ गया 19. हमेशा याद रखना, ये लास्ट वाले में जितना आएगा ये एन भी उतना होगा, क्योंकि एन हम ऐड करते करते आ रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये डिस्क्रीट सीरीज है तो मीडियन निकालेंगे. मीडियन का वैल्यू क्या है? मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एन प्लस 1 बाई टूथ आइटम. दिस इज द मीडियन वैल्यू. तो नाउ वी विल फाइंड आउट एन. एन कितना है बेटा? एन कितना है? एन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 19. 19 प्लस 1 बाई 2. 19 प्लस 1 टूथ आइटम. 19 प्लस 1 कितना होता है? 20. 20 बाई 2, 20 बाई 2 आपका आता है 10th आइटम. बेटा 10 नंबर वाला आइटम मीडियन है. अभी देखेंगे ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हैं उसमें 10 किसके अंदर में है? बेटा 2 के अंदर में 10 है क्या? नहीं. 5 के अंदर में 10 है क्या? नहीं. 10 के अंदर में 10 है. हाँ सर, 10 के अंदर में 10 है. तो ये 10 नहीं है, ये 10 है मीडियन निकालने के लिए. लेकिन 10 के सामने में जो वेरिएबल है, देखो 10 के सामने में क्या है? 10 के सामने में कौन सा वेरिएबल लिखा हुआ है? 10 के सामने में ये वेरिएबल लिखा हुआ है, ये मतलब 30. दिस इज आवर मीडियन. सो दिस इज द मीडियन. मीडियन क्या है? 10 के सामने में जो वेरिएबल लिखा हुआ है. 10 के सामने में कितना है? 30 है. तो लिखेंगे देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू हाउ मच? मीडियन कितना आया? मीडियन इज इक्वल टू 30.
बेटा समझ में आ रहा है क्या? और एक एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये हम किए थे एग्जाम्पल 3, अभी करेंगे एग्जाम्पल 4 और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 पहले समझ में आ गया, फिर हम एग्जाम्पल 4 करेंगे। तो लिखो एग्जाम्पल 4। देखो एग्जाम्पल 4। हाँ बेटा, लिखो एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 लिखो पहले। कैलकुलेट median from the following information। नीचे दिया गया इंफॉर्मेशन से आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। बेटा क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले देखेंगे, फिर मीडियन निकालेंगे। हमको एक्स वैल्यू दिया हुआ है, एफ वैल्यू दिया हुआ है। बेटा एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है 10 से 60 तक। तो फर्स्ट क्या क्या एक्स में 10 है, नेक्स्ट एक्स में 20 है, नेक्स्ट एक्स में 30 है, नेक्स्ट एक्स में 40 है, नेक्स्ट एक्स में 50 है, नेक्स्ट एक्स में 60 है। एक्स वैल्यू इज गिवन, एफ वैल्यू इज गिवन। एफ वैल्यू कितना? 10 का दिया हुआ है 2, नेक्स्ट 20 का दिया हुआ है 3, नेक्स्ट 30 का दिया हुआ है 5, नेक्स्ट और 40 का दिया हुआ है 4, नेक्स्ट 50 का दिया हुआ है 3, नेक्स्ट और 60 का दिया हुआ है 2। एन वैल्यू इज गिवन। व्हाट इज एन वैल्यू? मिला देंगे 2 3 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 3 17, 2 19। एन वैल्यू इज 19। बेटा हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम इसका क्या निकालने की कोशिश करेंगे? हम इसका मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे। मैं बताया था मीडियन निकालने से पहले एक चीज निकालते हैं जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट 2 का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 2 + 3 5, फिर 5 था, 5 था और 5 आया 10, फिर 10 था और 4 आया 14, फिर 14 था और 3 आया 17, फिर 17 था और 2 आया 19। बेटा ये समझ में आ गया। हमको याद रखना है ये वाला फिगर और ये लास्ट वाला फिगर मैच होना चाहिए 19 19। ओके ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे व्हाट इज मीडियन। हम पढ़े हुए हैं मीडियन क्या है, हमको पता है मीडियन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? n + 1 बाय टूथ आइटम। बेटा इस केस में n कितना है? n है 19 + 1 बाय 2। बेटा 19 कितना है? 19 + 1 मतलब 20/2। 20/2 कितना होता है? 10th आइटम। अभी हम CF में ढूंढेंगे 10 कहां पर है। 10 कहां पर है CF में ढूंढो। सपोज 10 है, यहां पर है 10 20 30 40 50 60, तो 10th इसके सामने है, 10th के सामने 30 है। सो देयरफॉर सो 10th के सामने जो आइटम है वो मीडियन है। मीडियन इज इक्वल टू 30। मीडियन का वैल्यू कितना आया बेटा? 30 आया मीडियन का वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? मीडियन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर हमको क्वेश्चन में यहां पर n + 1/2 आया सपोज 15, हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे क्या आया हमको क्वेश्चन में? n + 1/2 कितना आया? 15 आया। तो हम 15 ढूंढेंगे कहां पर है? 15 2 में नहीं, 5 में नहीं, 10 में नहीं, 14 में नहीं, 17 में 15 है तो 50 होता। अगर n + 1/2 आया आपका 13, तो 13 कहां पर है? ढूंढेंगे 2 में नहीं, 5 में नहीं, 10 में नहीं, 14 में है, तो मीडियन होता 40। तो इस हिसाब से हमको ढूंढना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मीडियन का वैल्यू हम ढूंढते हैं कहां पर? CF में ढूंढते हैं कहां पर मीडियन का वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज, दैट सीरीज इज नोन एज
continuous series. In case of continuous series, what is given? X value is given and F value is given, but X is given in class interval form. X का जो वैल्यू देता है वो क्लास इंटरवल फॉर्म में देता है. तो अभी हम कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर पढ़ेंगे. तो लिखो बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है. कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर हम मीडियन करेंगे तो देखना आपको पता चल जाएगा कैसे मीडियन निकालते हैं. तो अभी निकालेंगे कंटिन्यूअस सीरीज. बेटा, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज आपको क्वेश्चन में क्या देता है? कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्वेश्चन में एक्स देता है और एफ देता है, लेकिन एक्स कौन से फिगर में देता है? क्लास इंटरवल फिगर में देता है. अभी देखेंगे एक्स का वैल्यू और एफ का वैल्यू. एक सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स फिगर इज गिवन एंड एफ फिगर इज गिवन. एक्स इज सपोज राइट डाउन 0 to 10, next 10 to 20, next write down 20 to 30, next write down 30 to 40, next write down 40 to 50. But x value is given. Next f value is given. What is f value? F means frequency. Frequency आपको दिया हुआ है 3, 2, next 6, next 5, next 4. टोटल n दिया हुआ है कितना? 20. 3, 2, 5, 6, 11, 11, 5, 16, 4, 20. बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालने का कुछ स्टेप्स है. यहां पर डायरेक्टली मीडियन नहीं निकल सकता है. हमको पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा. तो लिखेंगे स्टेप्स टू बी फॉलोड. लिखो स्टेप्स टू बी फॉलोड. स्टेप्स टू बी फॉलोड in continuous series. Step 1, calculate median class. क्या निकालने को बोल रहा है? मीडियन क्लास निकालने को बोलता है. यहां पर मीडियन क्लास इजिकल टू यहां पर फॉर्मूला थोड़ा अलग है. हर जगह पर n+1 था, यहां पर आएगा n/2 थीटा. ये +1 नहीं है. तो स्टेप 1 समझ में आ गया. मीडियन क्लास निकालेंगे तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है? n/2 थीटा. स्टेप 2, from median class compute median. मीडियन क्लास से आपको मीडियन निकालना है. तो लिखेंगे मीडियन क्या है? मीडियन इजिकल टू एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है मैं समझाऊंगा. पहले फॉर्मूला लिख लीजिए. मीडियन इजिकल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू I. मैं समझाऊंगा ये फॉर्मूला क्या है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन. एक एक करके जाएंगे. समझ में आ रहा है क्या? एक एक करके समझेंगे. तो अगर क्वेश्चन में आपको x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, आपको मीडियन निकालने को बोलता है, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा. तो मीडियन क्लास निकालते हैं कैसे हैं? पहले n/2. तो देखते हैं यहां पर पहले मीडियन क्लास निकालते हैं. तो निकालते हैं सॉल्यूशन. पहले निकालते हैं मीडियन क्लास. बेटा मीडियन क्लास कैसे निकलेगा? मीडियन क्लास इज इक्वल टू
n डिवाइड बाई 2 आइटम। बेटा n कितना 20/2 दैट इज इक्वल टू 10th आइटम। तो मीडियन 10th आइटम है। तो 10th आइटम कहां पर है उसको ढूंढने के लिए पहले CF निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में CF निकालिए, CF निकालो। CF इजिकल टू कैसे निकलेगा CF? देखो CF इजिकल टू क्यूमुलेट करेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 3 + 2 5, नेक्स्ट 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20। बेटा CF आ गया। आपको ये CF में ढूंढ कर बोलो 10th आइटम कहां पर है। 10th आइटम कहां पर है? 10th आइटम देखेंगे। 10th आइटम मतलब क्या है? 3 में 10 है क्या? नहीं है। 5 में 10 है क्या? नहीं है। 11 में 10 है क्या? हाँ, 11 के अंदर 10 आता है। तो 10th आइटम उसी के सामने जो है वो मीडियन क्लास हो जाएगा। उसके सामने एक्स में जो लिखा हुआ है वो मीडियन क्लास है। तो हमको पता चल गया मीडियन क्लास इजिकल टू 20 to 30। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी हम क्वेश्चन से निकाल दिए मीडियन क्लास कितना है। बेटा मीडियन क्लास कितना आ गया? मीडियन क्लास इजिकल टू 20 to 30। मीडियन क्लास मिल गया कितना? 20 to 30। अभी मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए ये सब फॉर्मूला है, एक एक करके फॉर्मूला को पढ़ेंगे और समझेंगे वो क्या लिखा हुआ है देखेंगे, फिर मीडियन निकालेंगे। फर्स्ट एल, व्हाट इज एल? एल इज इक्वल टू, लिखो एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बेटा मीडियन क्लास कितना है? हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन में मीडियन क्लास दिया हुआ है कितना? 20 से 30। तो 20 से 30 के बीच का लोअर लिमिट कौन सा है? लोअर लिमिट है 20। तो 20 आ गया, एल आ गया। एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन, एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। हमको पता है एन क्या है? एन इज इक्वल टू क्या है? एन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम एन हमको पता है कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। अच्छा, n/2 CF और F। पहले F समझेंगे। व्हाट इज F? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, F का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। बेटा मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? मीडियन क्लास कौन सा है? दिस इज मीडियन क्लास। देखो क्लास में मीडियन क्लास है, उसका फ्रीक्वेंसी कौन सा है? उसका फ्रीक्वेंसी, उसका एफ है 6। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज इक्वल टू 6। दिस इज नोन एज एफ। बेटा और एक चीज बचा हुआ है सी एफ। व्हाट इज सी एफ? देखेंगे सी एफ क्या है? सी एफ इज इक्वल टू, सी एफ का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एबव मीडियन क्लास। इसका मतलब क्या है? मीडियन क्लास से ऊपर वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा मीडियन क्लास ये है, उसके ऊपर वाला क्लास, उसके ऊपर में ये है 10 से 20, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उससे मीडियन क्लास का नहीं, मीडियन क्लास का ऊपर वाला क्लास का। यहां इंपॉर्टेंट आइटम है एबव। इसका मतलब इसका ऊपर वाला क्लास ये है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? ये वाला आइटम है। दिस इज सी एफ। बेटा एफ और सी एफ इस तरह का है। एफ उसी सीरीज का है, सी एफ उसके ऊपर वाला क्लास का है। बेटा ये ऊपर वाला क्लास समझ में आ रहा है क्या? जो मीडियन क्लास आपका निकलेगा उसके ऊपर वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 5। आंसर आ गया 5। तो आंसर लिखेंगे यहाँ पर 5,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आता है 5। बेटा लास्ट आइटम पढ़ेंगे। लास्ट आइटम क्या है आई। आई क्या है, आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। आई का मतलब क्लास इंटरवल। आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल। बेटा ये 20 to 30 के अंदर में कितना इंटरवल है, ये जो मीडियन क्लास का आया मीडियन क्लास इंटरवल, ये है क्लास इंटरवल और मीडियन क्लास इंटरवल। मीडियन क्लास किससे आया 20 से 30 के बीच, इसका क्लास इंटरवल कितना है 20 के 30 के बीच का गैप है 10। बेटा सारा चीज समझ में आ रहा है क्या? तो क्या क्या मैं पढ़ाया, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने का क्या क्या स्टेप्स है मैं पढ़ा दिया। पहला पढ़ाया क्या, मीडियन निकालना, ऐसे मीडियन हम नहीं निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने का कितना स्टेप्स है, मीडियन निकालने का 2 स्टेप्स है। स्टेप 1 पढ़ाया, स्टेप 2 पढ़ाया। स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 बोलता है हाउ टू कंप्यूट मीडियन। उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। बेटा मीडियन क्लास कैसे निकलता है, मीडियन क्लास निकलता है n/2th आइटम। पहले n/2th आइटम डालकर मीडियन क्लास निकाल दो। फिर क्या करो, फॉर्मूला डालो। फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू आई। तो हर एक चीज को समझेंगे। एल का मतलब क्या है, एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। लेकिन इंपोर्टेंट एफ और सीएफ। एफ क्या है, एफ है जो मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, और सीएफ क्या है जो मीडियन क्लास के उसके ऊपर वाला का फ्रीक्वेंसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर सीएफ, वो क्या है ऊपर वाला का, सीएफ है ऊपर वाला क्लास का सीएफ, और आई है मीडियन क्लास का इंटरवल। मीडियन क्लास का इंटरवल इज इक्वल टू आई, दिस इज मीडियन क्लास इंटरवल। ओके, अगर ये सब चीज मिल गया, अभी ये सारा चीज को फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और हमको मीडियन मिल जाएगा। तो मीडियन का वैल्यू अभी निकालते हैं। ओके, तो कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट नाउ मीडियन वैल्यू। एक मिनट। हाँ बेटा, अभी देखेंगे मीडियन वैल्यू। मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे मीडियन क्या है, तो लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू, हाँ फॉर्मूला एल प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू आई। ये नाउ, और मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है, देखेंगे एल कितना है बेटा, एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मीडियन क्लास कितना है 20 से 30 है मीडियन क्लास, इसका लोअर लिमिट एल है 20, तो ये हो गया मीडियन 20 प्लस n/2, n/2 निकाले हैं, n/2 10th आइटम, n है 20/2, 20/2 मतलब 10th। ओके, तो 20/2 लिख सकते हैं इसको, 20/2 n/2 माइनस CF। CF निकाले हैं, CF कहां पर है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 5 है, डिवाइड बाई F। F कितना निकाले हैं, F का वैल्यू यहां पर है, CF क्या, F का वैल्यू 6 है, 6 इंटू आई। आई का वैल्यू निकाले हैं, आई इज इक्वल टू क्लास इंटरवल कितना 10 इंटू 10। सारा फिगर को डाल देंगे, हमारा मीडियन का वैल्यू निकल जाएगा। और मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस n/2, n/2 है 10 माइनस 5/6 इंटू 10, और मीडियन इज इक्वल टू कितना आएगा 20 प्लस ये 10 माइनस 5, 5 इंटू 10/6, that is equal to 20 plus 5 into 10, 50/6, that is equal to 20 plus 6 8 ja 48, 20 6 3 ja 33, that is equal to 20 plus 8.33, that is equal to 28.33। बेटा वैल्यू आ गया 28.33। तो व्हाट इज द वैल्यू, मीडियन वैल्यू कितना आया, मीडियन इज इक्वल टू 28.33। तो मीडियन यहाँ पर कैलकुलेट हो गया, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू कितना आया 28.33।
दिस इज आवर आंसर। बेटा ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। हाउ टू कैलकुलेट मीडियन ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्टली मीडियन नहीं निकल सकता है, पहले मीडियन क्लास आता है, मीडियन क्लास से मीडियन निकलता है। मीडियन क्लास विल बी n/2th आइटम एंड मीडियन विल बी l प्लस n/2 माइनस cf बाई f इंटू आई। ओके, ये अगर समझ में आ रहा है, और एक क्वेश्चन करेंगे मीडियन के ऊपर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन करते हैं। तो लिखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 5। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको मीडियन निकालना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में x देगा और f देगा, तो लिखेंगे x वैल्यू दिया हुआ है 10 to 20, नेक्स्ट दिया हुआ है 20 to 30, नेक्स्ट दिया हुआ है 30 to 40, नेक्स्ट दिया हुआ है 40 to 50, नेक्स्ट दिया हुआ है 50 to 60। x वैल्यू इज गिवन, नेक्स्ट f वैल्यू इज गिवन। व्हाट इज f वैल्यू? f वैल्यू लिखिए 3 2, नेक्स्ट दिया हुआ है 8, नेक्स्ट दिया हुआ है 4, नेक्स्ट दिया हुआ है 3। नाउ n वैल्यू, व्हाट इज n? n इज इक्वल टू 3 2 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 3 20। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका मीडियन निकालेंगे। तो पहले मीडियन निकालने से पहले पहले CF निकाल देते हैं। तो CF निकाल दो पहले। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कितना निकलेगा? फास्ट, ये फास्ट का हो गया 3 3 2 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 3 20। CF आ गया। ओके, तो अभी CF निकलने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। तो लिखते हैं मीडियन क्लास। तो क्या हो जाएगा मीडियन क्लास? मीडियन क्लास इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? n बाई टूथ आइटम। बेटा n क्या है? n है 20, 20/2 दैट इज इक्वल टू 10th आइटम। बेटा 10 कहां पर है? 3 में 10 है क्या? नहीं। CF में देखेंगे 5 में 10 है क्या? नहीं। 13 में 10 है क्या? हाँ, 13 के अंदर 10 है। तो 13 के सामने जो है वो हो गया आपका मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपका कितना हो गया? 30 से 40। सो दिस इज मीडियन क्लास। तो आपको मीडियन क्लास आ गया 30 to 40। अभी क्या करेंगे? मीडियन निकालेंगे। कैसे मीडियन निकालेंगे? फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला से सब मिल जाएगा। तो लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू आई। बेटा सारा चीज को पहले लिख देंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। एल का मतलब क्या है? व्हाट इज एल? एल मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लिखना पड़ेगा। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बेटा मीडियन क्लास कितना है? 30 to 40। तो व्हाट इज इट्स लोअर लिमिट? 30। एल हो गया प्लस एन। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितना है क्वेश्चन में? एन है 20। अच्छा, फिर करेंगे एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी
ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जो है उसका फ्रीक्वेंसी, बेटा मीडियन क्लास 30 से 40 है, उसका फ्रीक्वेंसी मतलब 8, 8 है एफ, तो 8। सी एफ इंपोर्टेंट, मैं जब भी बोलता हूं सी एफ इंपोर्टेंट क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये उसी क्लास का नहीं होता है, उसका ऊपर वाला क्लास का होता है। दैट इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class above median class। मीडियन क्लास का ऊपर वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास 30 से 40 है, उसके ऊपर कौन है 20 से 30, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 5। तो ये 5, ये जो आइटम है ये है सी एफ, ये है सी एफ उसके ऊपर वाला क्लास का। तो दैट इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट आई, आई क्या है, मीडियन क्लास इंटरवल। व्हाट इज मीडियन क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास कितना है, मीडियन क्लास से 7 30 से 40, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, गैप है 7 10, तो 10। नाउ वी विल अप्लाई आवर फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल टू, तो मीडियन निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे एल, एल कितना बेटा, एल है लोअर लिमिट 30 प्लस एन बाई 2, एन है 20, 20/2, 20/2 मतलब 10, माइनस सी एफ, सी एफ निकाले हैं, सी एफ है 8 बाई एफ, एफ क्या है उसी क्लास का, एफ है 8 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 8, ओके, इंटू इंटू आई, आई क्या है, आई है 10। दिस इज आवर वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 कितना है, 10 माइनस 8 है 2/8 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस, ये 2/8 को काट दो, ये हो गया 4, 10/4, 10/4 2.5, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 2.5, दैट इज इक्वल टू 32.5। दिस इज आवर आंसर। आंसर कितना आया 32.5। बेटा 32.5 कहां से आया, 32.5 कहां से आया, हम क्या किए फॉर्मूला डाले, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई। ओके, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू बाई एफ इंटू आई। एल है कितना, एल है n/2 एफ, थोड़ा गलती हो गया बेटा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2, n/2 आ गया n/2 10 माइनस सी एफ, ये 5, थोड़ा गलती हो गया बेटा, ओके नो इशू। फिगर सब बदल जाएगा थोड़ा, ओके। तो हम और एक बार करते हैं, एल प्लस n/2, n/2 आ गया, n/2 आ गया कितना 10 माइनस सी एफ, सी एफ का वैल्यू कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 5, 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 कितना होता है 5, तो ये हो गया 50/8,
बेटा 50/8 कितना आता है? 30 प्लस 50/8, 50/8 आता है 6.25, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 6.25, 36.25। दिस इज अवर आंसर। कहां पर गलती मैं कर दिया था? मैं CF लिखना गलती कर दिया था। ठीक है, CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, दैट इज इक्वल टू 5। CF है 5, ये वाला मैं गलत लिखा था, ये 5 होगा। 5 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी सही था 8। ठीक है, 10 माइनस 5 बाई 8, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 10 बाई 5 बाई 8, 5 बाई 8 इंटू इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 50/8, 8, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 6.25, दैट इज इक्वल टू 36.25 is our answer. Okay, so with this we conclude our discussion on median. ओके, मीडियन के ऊपर हम अपना डिस्कशन को यहाँ पर खत्म करते हैं। आप इस प्रॉब्लम को घर में सॉल्व कीजिए। ओके, विथ दिस आई कंक्लूड माय क्लास। सो बिफोर कंक्लूडिंग माय क्लास, लेट मी फर्स्ट रिपीट one thing. Always I am repeating, those who have not subscribed to my class, kindly subscribe it in my channel. My channel is Commerce Forum. Okay, and you, after subscribing the channel, kindly press the bell icon so that you can get all my latest videos. And if still you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamisra@gmail.com. Thank you. Thank you for watching my videos on YouTube. Thank you. Thank you all.